So, good afternoon to all of you. Now we will discuss about the how to use mean, median, and mode in X. How to use it in real life. So, make sure you all have pen and paper and calculator. We will see only three concepts over here: mean, median, and mode. So, calculator is required for the calculation purpose. So, first of all, let's write down the mean. The mean we know this mean is generally known as average of the data. If you have any data, then if you want to find the average, that particular word is in statistic known as mean. So there is actually simple formula over here. You can see the screen. Sample mean is equal to x bar is equal to this one is summation xi. Let's see. This one is summation xi divided by n. The meaning of summation xi is x1 plus x2 up to xn. So you can easily calculate the mean. Okay. So if you have any data like 1, 2, 3, 4, 5 up to 10, then you can easily calculate the mean. You have to first of all write the summation of the data and you have to divide by the total number. So simple write down the mean. Mean is equal to write down the most important measurement of the location is the mean. Simple, you have to write the formula x bar is equal to summation xi divided by n. Let's see one example. We will like calculate the four, three, four, four, five. So if you want to find write this solution, you can easily solution to write x bar is equal to 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. So you can easily say that 5 plus 4 is equal to 9, 10, 12, and it is 15. Okay. So your summation is 15. 15 divided by 5. Then your x bar, your mean is equal to 3. Everyone clear how to find the mean? Is there any doubt about the mean? Yes, So write down 10 example, no, not 10, write down 5 example for the mean. देखो आप यहाँ पर रैंडम नंबर भी ले सकते हो जैसे कि हो गया मीन के अंदर आप रैंडम नंबर नंबर लोगे तो उसका एक्चुअली मीडियन और मोड के अंदर आपको थोड़ा सीक्वेंशियली जाना पड़ेगा लेकिन मीन के अंदर जैसे कि हो गया 25,9 98,47,36 17,59,66 चलो अभी इसका मीन क्या होगा जल्दी से कैलकुलेट करके मुझे बता what is the mean of this there are 7 numbers. Okay, so calculate the mean for the 7 numbers and tell me the solution.
सर यस, सर 28 રોલ નંબરને એડ કરો ને. एक्चुअली मैं मीटिंग बंद नहीं करेली કે પેલું વેઇટિંગમાં નથી કોઈ. Sir, 49 point something. 49 point. Okay. Okay, roll number 38 and 23. Okay. And 28. Next कोई बाकी છે એડ થવાનું? Okay. So solution is what? 49.71. Now calculate the mean for 21, 36, 64, 74, 98, 71, चलो अब इसका मीन बताओ, इसका मीन क्या होगा? $37.67, $37.66, $37.6. Okay. 37.66666. चलो मीन क्लियर सबका? Now second concept is you have to calculate the, देखो इस तरह आपको टेबल दे तो आपको समझ होनी चाहिए how to calculate the mean. देखो यहाँ पर 1 से 6 और 7 से 12, there are total 12 data, so you can easily you can now calculate the, एक काम करो ना, कैलकुलेट ही कर लो. Calculate the mean for monthly salary, monthly starting salary. ठीक है, there are 12 data. सो यहाँ से शुरू करो 3450 से लेके 3480 तक, इन सबको ऐड करो और इसका मीन निकालो. Sir, 3540. Okay, 3540. Let's check. Okay, the solution is 3540. Correct. Now next concept is median. देखो मीडियन के अंदर अभी कोई लिखना मत, मैं मीडियन पहले समझा देता हूँ. मीडियन थोड़ा सा डिफिकल्ट है यहाँ पर. मीडियन के अंदर आपको 2 पॉइंट याद रखने की, या तो आपके पास जो है वो डेटा ऑड है की इवन.
यानी कि आपको जो 1 2 3 4 5 डेटा है तो वो हो जाएगा ऑड। इफ 1 2 3 4 तो वो हो जाएगा आपका इवन। तो पहले तो वो पता होना चाहिए कि डेटा ऑड है कि इवन। सबसे मेन पॉइंट, अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर यानी कि आपको, आपके पास जो डेटा है उस डेटा को आपको असेंडिंग ऑर्डर यानी कि स्मॉलेस्ट वैल्यू से लेके लार्जेस्ट वैल्यू तक उसको लिखना होगा। एवरीवन क्लियर? मीडियन के अंदर जैसे कि आपको दिया है 3 to 1, सो आपको लिखना पड़ेगा 1, 2, 3। अगर आपने 3 to 1 को 1 2 3 में नहीं लिखा तो आपका सॉल्यूशन नहीं बनेगा और वहीं पे आपका सॉल्यूशन गलत हो जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू, पहले पॉइंट लिख दो, स्मॉलेस्ट वैल्यू से लेके लार्जेस्ट वैल्यू उस तरह डेटा लिखना है। पॉइंट नंबर 1 करके लिखो, आपका डेटा अगर ऑड है, इफ योर डेटा इज ऑड, सो मीडियन जो है वो आपका होगा मिडल वैल्यू। मीडियन जो है आपका हो जाएगा मिडल वैल्यूज। अगर आपके पास डेटा इवन है तो जो आपका मीडियन होगा वो जो सेंटर जो बनेगा आपका, उस सेंटर का मिडल पार्ट यानी कि उसकी मिडल वैल्यू आपको कंसीडर करनी पड़ेगी। फिर से मैं क्लियर कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट दी डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। आपको स्मॉलेस्ट वैल्यू से लेके लार्जेस्ट वैल्यू तक आपको डेटा लिखना होगा। अगर आपके पास डेटा ऑड हो गया सो आपको क्या करना है, जो सेंटर में आ रहा है वही आपका सॉल्यूशन मीडियन होगा। अगर आपके पास डेटा ऑड इवन है सो आपको जो सेंटर में 2 पॉइंट आएंगे उन दोनों पॉइंट का एवरेज निकाल के लिखना पड़ेगा। लेट्स से एग्जांपल, देन यू विल गेट आइडिया हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन। देखो यहाँ पर आपको डेटा दिया है 1 2 3 4 5। पहले देख लेना है कि डेटा आपका असेंडिंग ऑर्डर में है कि नहीं। तो देख लो 32 42 46 46 एंड 54। चलो डेटा हमारे पास है। मैं साइड में सॉल्यूशन लिख रहा हूँ कि अवर डेटा जो है वो ऑलरेडी स्मॉलेस्ट वैल्यू से लेके लार्जेस्ट वैल्यू के बीच में है। स्मॉलेस्ट से लेके लार्जेस्ट की सीक्वेंस में है। दूसरा पॉइंट कि पहले ये देखना है कि डेटा ऑड है कि इवन। तो यहाँ पर ध्यान से देख लो, आपके पास देयर आर ओनली 5 नंबर्स व्हिच मीन योर डेटा इज ऑड। ओके, उसके बाद थर्ड वाला पॉइंट, तो आपका मीडियन कौन सा होगा, सेंटर पार्ट। अभी इसके अंदर सेंटर नंबर कौन सा है, 46। 46. देन योर सॉल्यूशन मीडियन इज इक्वल टू 46। एवरीवन क्लियर? Yes. जल्दी से ये वाली सीक्वेंस लिखो 32 से लेके 54 वाली, और नीचे सॉल्यूशन में लिखो आपके पास जो डेटा है ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है। योर ऑब्जर्वेशंस, योर नंबर इज n is equal to 5 which is odd, and your according to odd numbers your solution is 46. चलो नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट, सपोज दैट योर डेटाज आर इवन नंबर। देखो नीचे वाला ये वाला देख लो 3310 वाला।
You can clearly say there are 2 plus 2 4 6 8 10 12. देखो यहाँ पर आपके पास even numbers है, even number of data, which mean you have 12 data. अभी देखो यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम हमें ये होगा कि कौन सा हमारा मीडियन होगा. तो सिंपल पहले देखना है कि असेंडिंग ऑर्डर में है कि नहीं. If you see, then you can easily say that yes, our datas are in ascending order. अगर असेंडिंग ऑर्डर में है तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट हो जाएगा हमारा सेंटर पार्ट. देखो लास्ट में से तीन तीन डेटा निकाला, लास्ट में से सपोज कर लो यहाँ तक 5 डेटा निकाला हमने. सो ये बना हमारा सेंटर. वी कैन से देयर आर 2 डेटास इन सेंटर. सो जो डेटा सेंटर में आएगा उसका हमें निकालना पड़ेगा यहाँ पर एवरेज. पहले डेटा होना चाहिए असेंडिंग ऑर्डर में. असेंडिंग ऑर्डर में अगर आपका डेटा इवन नंबर है तो जो सेंटर पार्ट है उसका निकालना पड़ेगा हमें यहाँ पर एवरेज. और जो हमारा एवरेज निकला वो हो जाएगा हमारा मीडियन ऑफ द डेटा. एवरीवन क्लियर? Yes, sir. अभी प्रॉब्लम कहाँ पर होगी वो सुनिए. एग्जाम के अंदर मीन के अंदर डेटा आपको सिक्वेंशियली करने की जरूरत नहीं है. लेकिन अगर आपको एग्जाम्पल में क्लियरली बोला है कि फाइंड मीन मीडियन एंड मोड, सो पहले डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिख दो. उसके बाद उसके बाद काउंट करना है आपको मीन मीडियन एंड मोड. यहाँ पर अगर आपने डेटा जैसे कि 3925 सेंटर में आ गया, आपका 3925 सेंटर में आ गया, ये वाला डेटा पीछे चला गया, अगर असेंडिंग ऑर्डर नहीं हुआ तो जो पूरी की पूरी जो कैलकुलेशन है उसके अंदर एरर आएगी और आपका सॉल्यूशन गलत होगा. सो ये यूज कब होता है पता है? ये यूज तब होगा जब आपके पास 1000 2000 10,000 जितने डेटाज हैं तो उसके अंदर ये फॉर्मूला हेल्पफुल होगा. We can easily count by calculator if you have 10 20 and 30 data, तो हम easily इसको काउंट कर सकेंगे. बट if we have more number of data तो उसको काउंट करना थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है. सो मीडियन के अंदर एक ही चीज को याद रखना है, असेंडिंग करो, ऑर्डर चेक करो इवन है कि ऑड. अगर ऑड है तो सेंटर पार्ट, और अगर इवन है तो सेंटर पार्ट का एवरेज. जल्दी से ये सॉल्यूशन लिख दो. Next one is mode.
mode is the value that occurs with greatest frequency. Occurs with greatest frequency. फ्रीक्वेंसी यानी कि नंबर्स जो हमने वो रिपीट नंबर्स वगैरह देखे हैं हमने. આકોના ફોન ચાલુ જ છે ભાઈને ગીને આગે અને चल हो गया कौन स्पीकर ऑन म्यूट છે રોલ નંબર 40 રોल नंबर 40 ओके आई विल सी ओके लल्लू फटाफट स्पीकर ऑन थे रोल नंबर 38 एंड रोल नंबर 40 ओके द वुलन ओके मोड इज व्हाट यू हैव टू चेक द फ्रीक्वेंसी यानी कि अगर मैंने आपको सपोज एक एग्जांपल को देख लेते हैं ताकि अच्छी तरह से वो डिस्कस हो पाए. बहुत सिंपल है. फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक सपोज कि आपके पास इस तरह डेटा है 1 2 3 4 5 4 6 4 6 7 8 ठीक है. अब इसके अंदर आपको सिर्फ वो चेक करना है कि आपके पास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी. हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यानी कि कौन सा डेटा जो है सही कौन सा डेटा आपके पास यहाँ पर रिपीट हो रहा है. सो यू कैन इजीली से दैट कि हमारे पास डेटा रिपीटेड मोड में है 4 4 and third one is also 4. So the mode is the value that occurs with greatest frequency. उसको बोलेंगे यहाँ पर mode. So जो भी डेटा बार बार रिपीट हो रहा है वो आपका हो जाएगा mode of the question, or you can say solution of the data. Solution of the data. मेरे ख्याल से कि यहाँ पर ये परसेंटेज वाला बाद में डिस्कस करेंगे, अभी तो नहीं हो पाएगा. जैसे कि देखो यहाँ पर आप अगर डेटा देखो सो 3480 जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है. 3480 जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है. तो आपका मोड यहाँ पर कौन सा हो जाएगा 3480. क्लियर 3480. तो जल्दी से डेफिनेशन लिख दो मोड की. और मैं यहाँ पर 3 एग्जांपल मैं यहाँ पर दे रहा हूँ. You have to calculate the mean, median and mode of all the examples. Calculate mean, median, देखो इस 2 एग्जांपल अभी सॉल्व करो. मैं दूसरे 3-4 दे रहा हूँ. mean, median and mode that you have to calculate.
So calculate the mean, median, and mode for this four examples. देखो जिसमें रिपीट नहीं हो रहा है उसके अंदर मोड से मोड मोड लिखो है, मोड के मोड करके डैश कर दो। अगर कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है उसके मोड करके मोड इज इक्वल टू डैश। ठीक है।
सर यस, तो ये थर्ड में मोड कहाँ से होगा? थर्ड 3 होगा भी ये। 2 बार है 6, तो एक से ज्यादा हो सकता है मोड। हाँ, एक से ज्यादा हो सकता है। लिख दो ना, मोड करके लिख दो। एक तो हो जाएगा 3, एक हो जाएगा 4, 6 सिक्स 6 हो होगा। जाएगा। हाँ, लिख दो। हम्म। सर हो गया। सर थैंक यू।